Hello everyone, welcome to you all in maths class. Today I am taking the topic of class 11th, which is sequences and series. As per NCERT, it is chapter 9. So there are three topics in this chapter that we have to learn. The first is arithmetic progression, second geometric progression, and the third is spatial series. So out of that three topics I am taking for this video, I am taking arithmetic progression. Okay. Before it, I'll be giving you the introduction of the topic sequences and series. ये sequences and series होता क्या है? Arithmetic progression आप देख सकते हैं, आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है. अब सबसे पहले द नाम, चैप्टर का नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of a sequence? A sequence order of the numbers taken in some specific manner, such as आप कोरोना काल चल रहा है, अभी आप जानते हैं पेंडेमिक है, तो आपका मन किया कि आपने एक्सरसाइजेस शुरू करनी है, पर एकदम से आपको आदत अगर नहीं है तो एकदम से आप बहुत सारा तो नहीं कर सकते, तो आपने धीरे धीरे उसे बढ़ाना होता है. आपने सोच लिया कि पर डे में 5 पॉइंट्स बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी. देन व्हाट हैव यू डन? समझो आपने कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज को 5 टाइम्स किया, नेक्स्ट डे आपने उसे 10 टाइम्स एंड देन 15, इस तरह से आप उसे बढ़ाते गए. तो दिस इज कॉल्ड, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब आप टर्म्स लेके चलते हैं, देन दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. अगर आपने कहा कि मैं पहले दिन में 5 करूंगा, फिर मैंने अचानक से 100 कर लिया, फिर मैं 50 पे आ जाऊंगा. क्यों? क्योंकि पहले दिन ही आपने इतना ज़्यादा कर लिया, तो आपकी तबीयत ऑब्वियसली ख़राब होनी है. कुछ लोगों की हो सकती है कि ना हो. सो वी कांट टेक दिस टाइप ऑफ नंबर्स, वी हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. सो जनरली इन मैथ्स वी यूज्ड टू टेक पर्टिकुलर वैल्यूज फॉर इट. So the terms of sequences are represented as A1, A2, A3 up to AN. If I have finite number of terms in the sequence, we will say that it is a finite sequence. जैसे मैंने यहाँ लिखा, I have taken the course of 30 days, so I'll be writing 5, 10, 15 up to, so the last number I'll be writing 150. तो यहाँ पे 3 दिन का कोर्स मेरा ख़त्म होता है. सो दिस इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस. और अगर हमने सीक्वेंस को ऐसे लिया कि वो इट विल बी एक्सटेंडेड टिल एंड वी कांट गो फॉर द लास्ट टर्म, आई विल राइट इनफाइनाइट सीक्वेंस for it. For an example, I am taking 1, 6, 11 or like that. Is it okay? So this is what a sequence is. Now the second, in the sequence we will be learning about 2 sequences. First is arithmetic progression and second is geometric progression. So progression means जैसे progress कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. In which manner? It can be in ascending order or descending or any other pattern. So progressions are sequences. In sequences we have to learn about the progressions, AP, and in short we used to write it as AP, as you are already aware of, and geometric progression we will learn as GP. Now the next heading, you must have learnt about the sequence. Sequence क्या होता है? अब है series, the second word. If I have taken all the elements of a sequence as A1, A2, A3, it can be an infinite or a finite sequence. समझो हमने लास्ट तक AN ले लिया, I have taken finite sequence. If I am writing all the terms in this manner, just see this, A1 plus A2 plus A3 up to AN. This is called series, okay? सारे यही टर्म्स लिए हमने एंड इन प्लेस ऑफ कॉमा आई एम राइटिंग प्लस. आर यू गेटिंग दिस?
तो अगर आप बोलें, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए टर्म्स ले लिए 1 + 3 + 5 + 7, आई हैव टेकन अ फाइनाइट सीक्वेंस हियर। और अगर आप बोलें ऐसे कि ये तो फाइनाइट सीक्वेंस है, तो इसका एडिशन 16 भी एक अगर ये फाइनाइट सीरीज है तो इसका एडिशन 16 भी एक सीरीज होगा। सो दिस इज नॉट लाइक दैट बेटा, बिल्कुल मत लिखिएगा ऐसा। सीक्वेंस मतलब कॉमा and series, if I am showing the terms with plus or minus whatever sign is there, their addition plus positive numbers या negative some numbers, किसी का भी addition form में अगर हम show करें, that is series, and this is 16 is called sum of particular number of terms of that. Now let's start with arithmetic progression. ये टॉपिक आपको पहचाना हुआ लगेगा, इसीलिए इस टॉपिक से शुरू भी किया जाता है कहीं कहीं, क्योंकि लास्ट ईयर 10th में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है। इस बार भी शुरुआत वैसे ही होगी, पर सिंस यू आर इन हायर क्लास नाउ, तो यू हैव टू लर्न मोर अबाउट इट। कुछ ऑर्डर लेवल ऑफ द क्वेश्चंस विल चेंज, इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट वी कांट से, क्योंकि आपने तो सब्जेक्ट अपनी चॉइस से लिया हुआ है। नाउ arithmetic progression is the collection of numbers in which the particular term is added by, each next term is added by a fixed term. You are aware of it. If I am taken the standard form of it or general form, we can say we used to take as a plus d। क्या है हमारे पास, पहला टर्म हमारे पास था a, उसमें मैंने पर्टिकुलरली एक वैल्यू ऐड करी दैट इज d, एंड इन ईच नेक्स्ट टर्म आई विल बी एडिंग दैट d अगेन, तो आई विल बी गेटिंग a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। नाउ इससे आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई है लास्ट ईयर, फिर भी एक जस्ट रीकैप, इससे आप निकालते हैं जनरल टर्म। उससे पहले जब आप यहां पे सीक्वेंस लिखते हैं, दिस AP यूज्ड टू राइट, यहां पे फर्स्ट टर्म is equal to a, and since the terms of the JP, if I have taken of an AP, I have taken as A1, A2 up to AN or A3 up to the particular value. Here A is the first term which is A1. Now the second term आपने इसमें पढ़ा है what is AP, a particular fixed number is added in each next number. So that is how to get that number. If I am writing A2 minus A1, okay, or I can write A3 minus A2, and in the same manner if I am taking the next number minus the preceding one, then I'll be getting the value, आप यहाँ से check कर लीजिए, you will be getting the value as D. So in all, difference is same in two terms, difference of two terms is same. So that's why, since it is same, or we can say common, that's why it is called common difference. For D we used to write the word as common difference. नाउ इन सब चीज़ों का यूज़ करके अभी अब निकालना है जनरल टर्म। अगर आपको कोई AP दे दिया गया, इफ़ दे आर आस्किंग फॉर टू फाइंड, आपको बोल दिया गया उसका 12th नंबर, उसका 3rd 4th टर्म निकालना, तो आपके लिए इजी है, आप पर्टिकुलर D ऐड या जो भी वैल्यू दी जाएगी आप उसे ऐड करते जाएंगे। बट इन केस बहुत दूर का नंबर आपको बोल दिया 50th टर्म निकालिए, सो व्हाट विल यू डू? सो फॉर इट वी रिक्वायर्ड formula, as in maths we always use formula to make our work easier. So let's see how to get general term. आप इसे टैली करिए, फर्स्ट टर्म में a है, कितने d हैं? 0d. इन सेकेंड टर्म you are having 1d, थर्ड टर्म 1d, second position but 1d, similarly third position 2d's are there. अगर आपको बोला जाए 10th position निकालिए, obviously one lesser d will be there. If they will ask you to find A10, so you will be writing A plus 9D as per going for the
कंडीशंस। तो इस तरह से आपको कोई भी जनरल टर्म, आपको बोल दिया 90th टर्म निकालिए, a प्लस 90, a 90 इफ दे आर आस्किंग फॉर, एक कम d होना चाहिए, a उतना ही रहेगा, a प्लस 89 d विल बी देयर। सो इस तरह से एक जनरल फॉर्मूला निकाला जाता है। इफ आई हैव टेकन अ जनरल टर्म एज an, सो व्हाट विल बी द वैल्यू? चलिए ट्राई इट। व्हाट वी हैव टू टेक, जो पोजीशन है उसमें a आएगा, साथ में d में 1 लेसर वैल्यू विल बी देयर। तो n से 1 लेसर क्या होता है? n minus 1. So I'll be writing a plus n minus 1 into d. It will be taken as general term. Similarly, for the AP, we can find the last particular term from the end. This is a term, a general term. अच्छा, हम sequence ascending order में हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक particular term निकालने बोल दिया. But in case they will ask you nth term from the end, if they will ask you to find this value, तो हमें क्या करना है? एक तरीका है कि हम पूरा मेथड यूज़ करें जैसे आपने लास्ट ईयर भी किया था। आप उस ऑर्डर को, क्योंकि आपको उसमें फाइनाइट एपी मिलेगा, तो आपको उस ऑर्डर को रिवर्स करना है एंड फिर आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लेंगे। एंड सिंस यू आर रिवर्सिंग द ऑर्डर, जैसे आपके पास 1 2 3 4 1 3 5 7 यू आर हैविंग, आप उस ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 7 5 3 1. Here d is equal to 3 minus 1 which is 2 and a is 1, whereas here यहाँ क्या होगा? d is equal to 5 minus 7, जैसे हम जानते हैं कि a2 minus a1. So we will be getting minus 2. यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव 2 आ जाएगा, d का साइन रिवर्स ऑर्डर करने से साइन बदल जाता है, एंड a यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया तो वो पहले वाले के लास्ट टर्म के इक्वल होगा एंड आंसर विल बी सेम. तो इस तरह से क्यों ना हम इस फॉर्मूले को याद कर लें, उस चीज़ को समझ लें फॉर्म को, तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करने से वी कैन गेट द आंसर. सो द nth टर्म फ्रॉम द एंड वी कैन राइट एज, इन प्लेस ऑफ फर्स्ट, पहले टर्म की जगह हमारे पास आ गया लास्ट टर्म, प्लस क्योंकि d मेरा जो भी वैल्यू था वो नेगेटिव d हो गया, n minus 1 into minus d, and the answer is L minus n minus 1d. Now the next topic is sum of finite number of terms. We can say n terms of AP, the next topic. So here you must have learnt about the two formula. उसी फॉर्म को हम लिखेंगे, लास्ट ईयर आपने उसका प्रूफ किया है. The formula are, पहला तो Sn is equal to n by 2 a plus L. As you know that L आपका लास्ट टर्म होता है, A is the first term, n number of terms. इफ यू आर नॉट हैविंग एल, ये फॉर्मूला तभी यूजफुल है जब आपके पास लास्ट टर्म है. इन केस आपके पास लास्ट टर्म नहीं है तब क्या करेंगे? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ हमने l इज इक्वल टू जो हमारा लास्ट टर्म है दैट कैन बी टेकन एज nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वैल्यू पुट कर दी तो हमें ये आंसर मिल गया. So these were the things that you have learned last year. एक पॉइंट और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको मालूम है. यू कैन गेट द पॉइंट्स ऑन द सेम पेज वेयर द टॉपिक्स आर रिटन, नोट्स आर देयर. आप कभी भी उसे फॉलो करें तो यू कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. अब कुछ क्वेश्चन जो हमने किया, तो इस साल का और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस को बताने के लिए जो आपने पिछले साल पढ़ा है उसी से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं. फाइंड द 18th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन.
आपके पास प्रोग्रेशन दैट ए पी है √2, 3√2, 5√2, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि ए पी है, सो हमें उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं और सीधे हम उसका पर्टिकुलर टर्म निकालेंगे. हियर इन द फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d, we will take a, n is equal to 18, a is √2, or what about d? d is 3√2 minus √2, that is, what is it? It is 3 times x minus √x will give you 2x, so you are getting 2√2 here, isn't it? अब इस फॉर्मूला में पुट कर लीजिए. an is equal to a18 is equal to √2 plus 17 into, so इंस्टेड बार बार अगर आप n की वैल्यू पुट करें तो आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा. बड़ी क्लास में आ गए आप. सो यू कैन यूज दैट कंडीशन कि जो भी आप टर्म ले रहे हो उससे 1 लेसर d ले लें. सो यू आर हैविंग 17 into 2√2, that will give you √2 plus 32√2, 34√2, and it is 35√2. Similarly, the second question is a term of AP 302? We have to check whether 302 is a term of AP. AP आपको दिया हुआ है. We are having AP as 3, 8, 13 and so on. यहाँ a is equal to 3, d is again 8 minus 3 which will give you 5, and the last term is also given an. जब last term को हम nth term निकालना है हमें तो हम last term an ले लेते हैं 248. Is it okay? तो अब हम same formula use करेंगे. an we are having as 248, फिर a plus 3 plus n minus 1. अब क्योंकि हमारे पास position of the term नहीं है तो we will be taking n minus 1, and d is 5 is equal to 248. सॉल्व करिए और उसे बताइए मुझे वैल्यू कितनी आती है. ट्राई इट. वी आर गेटिंग n minus 1 into 5 is equal to 248 minus 3 which is 245, and it will be divided by 5 and we will get 49. तो in that manner n is equal to 50. अब मुझे n की वैल्यू मिल गई. सो सिंस n है पोजीशन, आप क्लास में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, पर आप 1/3 पोजीशन नहीं आते या आप -2 भी नहीं आते. तो जब भी पोजीशन ली जाती है तो हमेशा नेचुरल नंबर्स. ठीक है, अगर आपका n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आ गई तो आप क्या बताएंगे उसे कि दिस इज अ टर्म. n की वैल्यू आ गई. इन केस अगर आपको आंसर मिला होता 50/3 या इस तरह से कोई आंसर आया होता, सिंस इज इट अ फ्रैक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, तब आप लिख देते कि वो टर्म पर्टिकुलर्स AP का टर्म नहीं है. मैनर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हियर दे आर आस्किंग फॉर फाइंडिंग द टर्म फ्रॉम द एंड. सो क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टर्म फ्रॉम द एंड का, अभी आपने लिखा है फॉर्मूला था आपका पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड. अगर हम चाहें an को हम लेते हैं nth टर्म, वी कैन टेक an डैश फॉर आवर कन्वीनियंस. मैथ्स में बहुत आराम से चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है. तो a dash n can be taken at the term from the particular end. So I will be writing the formula L minus n minus 1 into d. तो सीक्वेंस आपका यहाँ पे क्या है? It is 1, 4, 7, 10. तो यहाँ आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a 1 and d आपको दिख रहा है 3. And the last term you are getting as 88. तो यहाँ हमें फर्स्ट टर्म का यूज है क्या? नहीं है. तो हमें निकालना है 12th टर्म. n को हम ले लेंगे 12. सो द फॉर्मूला इज 12th टर्म फ्रॉम द एंड इज equal to, we can say 88 using the formula minus 11 into 3. So what is 88 minus 33?
It is 55. So in that manner, using the formula, you can directly get the answer. So let's go for the next. In the question क्या है आपका? If mth term of AP is 1 by n and the nth term is 1 by m, you have to prove that mnth term is 1. यहाँ पे तो आंसर भी दे दिया, तो आपका कुछ भी आंसर आएगा तो आप टेली कर सकते हैं ना कि आपने सही किया कि नहीं. So let's go for it. जब यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म्स नहीं दिए जाते, दैट टाइम व्हाट विल यू डू? यू विल टेक द फर्स्ट टर्म, यू हैव टू अज्यूम द फर्स्ट टर्म. क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट टर्म, लेट अस टेक फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए. कॉमन डिफरेंस भी हम लेके चलेंगे d. देन यूजिंग द कंडीशन, क्या दिया है? mth टर्म. एज पर द क्वेश्चन, what are you having? mth term am is equal to 1 by n is given to you. तो let us apply its formula. अब mth term है तो क्या होगा? a plus 1 lesser d will be there is equal to 1 by n. इसे हम equation 1 ले लेते हैं. Similarly, the second term is an which is 1 by m, और उसे क्या लिया जा सकता है? a plus n minus 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाय m. अब इसे सॉल्व ऐसे ही करना है, बस आपके साथ थोड़ा कुछ परेशानी ये आती है कि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बट वी कैन अप्लाई द सेम कंडीशन. उसमें नंबर्स की जगह हमारे पास कांस्टेंट आएंगे. लेट अस गो फॉर इट. वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस. ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द ब्रैकेट. जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, माइनस की जगह प्लस, यहाँ भी. एंड ऑन सॉल्विंग आप देखेंगे m माइनस n, you are getting d is equal to 1 by n minus 1 by m. Taking LCM, you will be getting m minus n upon mn. And when we will cut off the things which are common constant है, we will be getting d is equal to 1 by mn. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें आपने नंबर्स लाए, but here we are getting a constant term. In the same manner, we have to put this value in equation 1. From 1, what shall you get? From 1, you will be getting a plus m minus 1 into d की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, that is 1 by mn is equal to 1 by n. On opening the bracket, what shall we get? a plus इस ब्रैकेट को, टर्म्स को अलग अलग किया, 1 by n minus 1 by mn is equal to 1 by n. These two terms will get cancelled because they are same, and ultimately the value of a is 1 by m n we are getting, isn't it? So इस तरह से आपके पास d की भी वैल्यू आ गई, a भी है आपके पास, and what you have to find now, अब आपको क्या ढूंढना है, उसमें क्या निकालना है? They are asking for mnth term. जैसे आपके पास दिया हुआ है 6th टर्म दिया है एंड 5th टर्म दिया है, और फिर वो बोल दें 6 5 30th टर्म निकालिए, तो पोजीशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ. हियर आई हैव टू फाइंड mnth टर्म मतलब amn, and the formula for it will be a plus mn minus 1 into d. On putting the values of a and d, what shall we get? 1 by mn plus mn minus 1 into 1 by mn. Let's open the bracket and check whether we are getting the answer as 1 or not. Questions based on sum of n terms. So इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला इज देयर. फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ एन AP. You are aware of the formula Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. हमें इस फॉर्मूला का, नहीं तो n by 2 a plus l. We have to use either of this formula. Now the first question is
not having the last term in it, L है नहीं, तो we can directly apply the first form. For question number 15 you are having a series here. series क्यों लिखा है आप जानते ही हैं, यहाँ पे हर एक टर्म में सीक्वेंस में कॉमा होता है, whereas here we are having positive sign प्लस प्लस दिया हुआ है, that's why उसे क्या लिखा जाता है, सीरीज. अब इसे हमें निकालना है, find the sum of series. We are having given series 2 plus 5 plus 8 plus up to 182. Here we जिस तरह से हम सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें टर्म्स फाइंड करने हैं. वी हैव टू, हियर वी आर हैविंग a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस भी हमें दिख जा रहा है. d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 3. अब हमें सम निकालने के लिए फॉर्मूला में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वी रिक्वायर्ड n. यहाँ अगर हमने लास्ट टर्म वाला भी फॉर्म यूज़ किया, एज वी आर हैविंग हमें n की भी वैल्यू चाहिए, तो पहले उस जब सीरीज़ के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है हमें पहले n निकालना है. सो हाउ टू फाइंड n? n के लिए हम a n इज इक्वल टू 182 लेते हुए उस फॉर्म से n की वैल्यू फाइंड करेंगे. इट इज़ a प्लस n minus 1 into d is equal to 182. Putting the value, we are getting 2 plus n minus 1 into 3 is equal to 182. And बताइए वैल्यू ऑफ एक n क्या होगी फिर यहाँ से, सॉल्व इट. इट इज़ n minus 1 into 3 is equal to 180 and it will be divided by 3. n minus 1 is equal to 180 by 3, which you will get as 60, and n is equal to 60 plus 1 61. इस तरह से आपके पास n की वैल्यू आ गई. नाउ यू कैन गो फॉर द फॉर्मूला. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके an से n निकाला, an वी आर हैविंग, तो क्यों इस फॉर्म को यूज़ किया जाए, इतना बड़ा फिर से वैल्यू रखें, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा. लेट्स गो फॉर दिस फॉर्मूला. वी विल बी यूजिंग S61 हमें निकालना है. यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है इन सब की वैल्यू, और हम जानते हैं कि दे आर 61 टर्म्स. जब ये 61 टर्म्स हैं तो S61 विल गिव यू 61 बाई 2. a कितना है आपके पास, 2 प्लस l इज 182 इज इक्वल टू 61 बाई 2 इंटू 184. दैट शुड बी divided, and we are getting 92. And what will be the, is it 5612? Just the next question we are going to solve is, we have to find the sum of all natural number between 1 and 100. इसमें आपको AP दिख नहीं रहा, साथ में लिखा है which are divisible by 3. तो first of all we have to form an AP. If the word between is there, we will not include 1 and 100 in it. We have to search for, यहाँ तो दिख रहा है आपके पास which are divisible by 3. You can directly go for, you can start from 3. But in case अगर उन्होंने odd number बोला होता क्वेश्चन में, तो आपको 1 को इंक्लूड नहीं करना है. बिटवीन वर्ड जहाँ भी आया तो वो टर्म्स आपके नहीं रहेंगे, द लिमिट शुडंट बी देयर. यहाँ हमारे पास सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा, AP इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 3, देन 6 9 and up to the last term we have to search for. तो 100 से पहले ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल है, that is 99. तो इस तरह से हमारा AP फॉर्म हो गया. use the same method as you have solved in the previous question, you will get your answer and you can tally it. Question number 18 we are solving now. Question number 18 देखिए बेटा, वहाँ पे भी अलग फॉर्मेट दे दिया. इसमें आपको सॉल्व लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में कि AP है कि नहीं है. सो यू कैन चेक इट आउट. यू आर हैविंग 1 4 7. आप देख सकते हैं कि 4 minus 1 is 3, 7 minus 4 also is 3, 10 minus 7 भी 3 है. इस तरह से आपको AP मिल गया. यू हैव टू फाइंड x here. तो इन जनरल अगर मैं लेके चलूँ, सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन टू अस, हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है तो हमें x निकालना है. तो व्हाट विल बी x? x इज nth टर्म, हमें nth टर्म फाइंड करना है यहाँ. सो गिवन AP,
I'll be taking as 1, 4, 7, 10 up to x, and here a is equal to 1, d आपके पास 4 minus 1 3 है, फिर आपके पास a n दिया है x which is unknown जो हमें फाइंड करना है, s n दिया है, सबका सम 590 लिखा है, that is s n is 590. Here there is no n, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं मालूम, तो हाउ टू गो फॉर इट, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, एस एन का फॉर्मूला यूज करके वी विल बी फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स. तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ, राइटिंग 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सॉल्व करने से हमें मिलेगा, वैल्यू पुट करें, एस एन आपके पास कितना दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 590. जब हम सॉल्व करेंगे तो वी कैन गेट n बाई 2, 2a मतलब 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 590. द नेक्स्ट टर्म विल बी n बाई 2, this is 3n minus 1. We will be multiplying it by 590 and what shall we get? It will be equal to 1180, isn't it? So the next is we will be opening the bracket, collecting all the terms together. एक quadratic equation हमें मिलेगी जिसे हमें solve करना है. This is 3n square minus n minus 1180 is equal to 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट शैल यू गेट, कैसे सॉल्व कर, व्हेन यू विल स्प्लिट इट यू विल बी गेटिंग 3n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 59n माइनस 1180 is equal to 0. On solving you are getting 3n n minus 20 plus 59 n minus 20 is equal to 0. इस तरह से n की दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, one is n is equal to 20 and the other is n is equal to minus 59 by 3. जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि n कैन बी अ नेचुरल नंबर, पोजीशन ऑफ द टर्म्स है, तो ये नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो हमारा आंसर, हमारी वैल्यू ऑफ n इज 20. अब इसका यूज करके, क्योंकि x इज द nth टर्म ऑफ दैट AP विच इज मेंशन अर्लियर, वी विल बी फाइंडिंग x इज इक्वल टू विच इज a plus n minus 1 into d. we are applying the formula. A की जगह we are having 1 plus 19d since we are taking 20 terms. D is 3. So the answer is 58. Okay. So the next question we are solving is question number 20. Now question number 20 is, if S1, S2, S3 be the sum of first n, 2n and 3n terms of an AP, you have to prove this thing. प्रूव करना है, आंसर आपके सामने है फिर से. सो लेट अस गो फॉर इट. फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा. लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, then S1 is the sum of first n terms of n. If I have taken the AP as a plus d, a plus 2d up to n terms, 2n terms and 3n terms, I'll write S1, Sn की जगह पे मुझे S1 लिखना होगा, and number of terms are n. So n by 2, 2a plus n minus 1 into d. ठीक है. The next is sum of 2n terms. Sum of 2n terms I'll take as S2. ये sum of one term नहीं है बेटा,
इसको एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये S1 है तो फर्स्ट टर्म निकाल लें, बट हियर इन द क्वेश्चन इट इज स्पेसिफाइड दैट S1 मतलब सम ऑफ n टर्म्स, S2 इज सम ऑफ 2n टर्म्स एंड S3 इज द सम ऑफ 3n टर्म्स. हियर S2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2n टर्म्स का सम है बस n विल चेंज, यहाँ पे n की जगह पे 2n/2 आएगा, देन 2a प्लस 2n minus 1 into, we will be keeping S2 as 2n/2, 2a plus n minus 1 into d. Similarly, S3 is equal to 3n/2, 2a plus n minus 3n. In place of n हमें क्या लिखना है n की जगह, 3n minus 1 into d. अब इन सब चीज़ों का, ऐसे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उनका यूज करके हमें क्या प्रूव करना है, S3 इज इक्वल टू 3 into S2 minus S1. सो राइट, RHS में वैल्यू हमने पुट करनी है, इट इज 3S2 minus S1. लेट अस पुट द वैल्यू. S2 कितना है, देखिए यहाँ पे कैंसल आउट नहीं करिएगा क्योंकि बाद में इसी ही यूज करना है हमें, तो आई विल राइट 2n/2, 2a plus 2n minus 1 into d minus n/2, 2a plus n minus 1 into d. जब आप इसे ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको कॉमन निकालना है. व्हाट इज कॉमन इन इट, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, जो मल्टीपल फॉर्म है, यहाँ पे n/2 दोनों में ही है, सो आई विल टेक आउट n/2 कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स. I'll get n/2 and in the bracket what are we left with, क्या बच रहा है, 2, 2a plus and 2n minus 1 into d minus 2a plus n minus 1 into d, and जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी I'll get 3n/2, then again 4a minus 2a plus 4n minus 2 minus n plus 1 into d. On solving all the terms, what shall I get? We will be getting 3n/2, क्या मिलेगा, 2a plus 4n minus n, 3n minus 1 into d. ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, ऐसी कहीं वैल्यू दिख रही है इस बोर्ड पे, है ना, यहाँ देखिए S3 is same, isn't it? So you have got S3 as answer, which is your LHS. Question number 23, if mth term of AP is 1/n, ऐसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन किया, वहाँ पे आपने क्या निकाला था, आपको याद होगा, in that question you have found nth term and it was given to you as 1, isn't it? So अभी यहाँ पे उसी क्वेश्चन में उन्हीं वैल्यूज को लेते हुए हमें सम ऑफ mn टर्म्स निकालना है. सो लेट अस गो फॉर इट. कैसे करें, फिर से अगेन वी विल बी टेकिंग द फर्स्ट टर्म एज a, कॉमन डिफरेंस एज d, एंड उसी तरह से जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, यू विल बी गेटिंग a plus m minus 1 into d is equal to 1/n, a plus n minus 1 into d is equal to 1/m. जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा a is equal to 1/m mn and d is also 1/mn. इस पूरा को आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, यू कैन सी द प्रीवियस पेजेस. नाउ इस वैल्यू से अब हम निकालना है s of mn. सिंस वी आर हैविंग d हियर, d की वैल्यू हमारे पास है, तो वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला. अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी n दिया है, सम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, देन द नेक्स्ट इज a, 2a, 2/mn, 2 into 1/mn is 2/mn, प्लस n की जगह mn आएगा, -1 into d is what, d is 1/mn. So let's open the bracket and solve it. We are getting mn/2, 2/mn plus, open the bracket, mn/mn minus 1/mn
वी कैन टेक एलसीएम, mn बाहर निकाला जा सकता है, mn/2, एनी ऑफ द मेथड्स जिसमें आप कंफर्टेबल हो, यू कैन यूज दैट। जब हमने mn एलसीएम ले लिया, वी आर गेटिंग 2 प्लस mn-1। सो इस तरह से mn विल गेट कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद हाफ ऑफ mn+1। क्या यही आपको प्रूव करना था? जस्ट सी दिस थिंग, दिस इज द आंसर। सो यू हैव गॉट द सम ऑफ mn टर्म्स एज हाफ mn+1। कुछ क्वेश्चंस में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो हम रूटीन की टर्म्स में सॉल्व करना हमारे थोड़ा टफ होता है, तो उन चीज़ों को आपको याद रखना है। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन में आपको। सो जस्ट सी दिस वन। इसमें भी वैसे ही दिया है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। यहाँ पे इन प्लेस ऑफ mth यू आर हैविंग pth टर्म। द pth टर्म ऑफ एन AP इज A एंड द qth टर्म इज B, और आपको फिर से सम निकालना है। पर क्यों दोनों क्वेश्चन एक जैसे नहीं हैं? कुछ ना कुछ सॉल्व करने के मेथड्स में डिफरेंट होगा। सो लेट्स गो फॉर इट। वी विल अगेन स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, जैसे हर बार लेते आए हैं आप। फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। सो एज पर द क्वेश्चन you will be getting AP, pth term बोला है, that is AP is equal to A। अच्छा, since here in the question small a is already given, so we will not take the first term as a small a, we will start it with capital A। Already small a is there in the question, so first term is capital A। I will write AP is equal to A here, and its formula A plus P minus 1 into D is equal to A, equation 1। Similarly AQ is equal to क्या है? B है। तो what will you get? You will get A is equal to Q minus 1 into D, A plus is equal to B, equation 2। अब आपको फिर से सॉल्व करना है, फिर से हम उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो नया है वो नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे पता चलेगा। लेट्स सब्ट्रैक्ट दिक। इन दोनों को अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल रहा है आपको? ऑन सब्ट्रैक्टिंग आपको क्या मिल रहा है? P माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बताइए ज़रा? A माइनस बी। इस तरह से आपको D की वैल्यू मिल गई, A माइनस बी अपॉन P माइनस क्यू। अगर अब आपने इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इक्वेशन 1 में शिफ्ट किया, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। तो लेट अस अप्लाई अनदर कंडीशन। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 प्लस 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी विल ऐड बोथ द इक्वेशंस। तो क्या मिलेगा हमें? देखिए ज़रा, अगर अब सब्ट्रैक्शन की जगह हमने ऐड किया इन दोनों को, वी आर गेटिंग 2A प्लस ब्रैकेट में मैंने D को कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट के टर्म व्हाट एम आई गेटिंग? P माइनस P प्लस Q माइनस 2, isn't it, is equal to A plus B on adding. This is subtraction and this one is addition. Let's go for the next one. 2A plus P plus Q माइनस 1 आई हैव टेकन, मैंने अलग से ले लिया उसे, एंड एक जो -1 बचा उसे D को मल्टीप्लाई करके मैंने उसे अलग से लिख दिया। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ इट? इसका यूज क्या है देखिए ज़रा। वी आर गेटिंग 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A प्लस B प्लस D। यहाँ इन प्लेस ऑफ D हम D की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर क्या ये कुछ वैल्यू, इसको अभी हम फिलहाल इक्वेशन 3 लेके रखते हैं और इसका क्या यूज़ है आगे आप समझ ही जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है? व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? हमें वैल्यू निकालनी है सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स की। सो एस P प्लस Q हमें निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, isn't it?
तो ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे? एस पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय 2, फिर 2a की जगह कैपिटल ए है, प्लस n in place of n what are we having? p plus q. So we will write p plus q minus 1 into d. ये कुछ देखा हुआ तो नहीं लग रहा आपको? What is it? क्या है ये जो आपने इक्वेशन 3 लाया? उसका LHS वही है, देखिए ज़रा. So we can directly put its RHS in place of it. So what shall we get? We will be getting p plus q by 2. In place of 2a plus p plus q minus 1, we will write a plus b. अब यहाँ पे d के साथ उसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं. Let us write a plus b plus d कितना है? a minus b upon p minus q. तो इस तरह से थोड़ा सा प्रोसीजर में चेंज आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन इजी बना देता है, और क्योंकि अब आपको ये आंसर मिल चुका. ओके, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आपने सिंपल टर्म्स वाले क्वेश्चन किए थे 10th में, उससे थोड़ा सा हायर ऑर्डर आपने सीखा यहाँ पे. सो चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ n terms of 2 arithmetic progressions, that is APs, are in ratio 5n plus 4, ratio 9n plus 16, and you have to find the ratio of their 18th terms. Now what to do? First of all, we will be assuming यहाँ पे दो अलग अलग APs दिए हैं, but we have to find the sum of n terms. Number of terms दोनों में same हैं, AP different हैं. So accordingly हम first term of first AP A लेते हैं और second AP का first term A dash. Similarly common difference भी हमने D and D dash ले लिया. यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sum of the ratio of the sums of both the APs. तो Sn अगर मैंने लिया Sn upon S dash n, फर्स्ट AP के n टर्म्स का सम आपके पास 5 एंड द रेशियो विद S dash n, उसका रेशियो दोनों का 5n plus 4 upon 9n plus 16 है. We will be writing the formula here. फॉर्मूला क्या आता है? जो D वाला फॉर्म है, n by 2 2a plus n minus 1 into d upon n by 2, क्योंकि यहाँ सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म a dash है, 2a plus n minus 1 into d dash, और साथ में गिवन रेशियो. अब इसके बाद हमें निकालना है रेशियो ऑफ 18 टर्म्स. दोनों AP के 18 टर्म्स का रेशियो हमें फाइंड करना है. तो लेट अस गो फॉर इट. इसको थोड़ा सा हम ड्रॉप करते हैं और फर्स्ट थिंग वी कैन डू, वी कैन कैंसिल आउट n by 2. अब हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह के टर्म हमें चाहिए. a18 by a dash 18 अगर आपके पास लिखा है, दैट मीन्स आपको फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ, हमें चाहिए a18 अपॉन a dash 18. इन प्लेस ऑफ, तो वी शुड गेट a plus 17d अपॉन a dash plus 17d dash. कंपेयर किया, फर्स्ट टर्म तो यहाँ दोनों में a दिख रहे हैं, d भी वैसे ही d एंड d dash भी दिख रहे हैं, बट व्हाट इज शिफ्टेड? इन प्लेस ऑफ n plus n minus 1 upon 2 वी रिक्वायर्ड 17. अगर हमने यहाँ पे 17 रख दिया तो हमें ये टर्म मिल सकता है. सो लेट अस टेक n minus 1 by 2 is equal to 17. तो क्या मिला सॉल्व करने से? n is equal to 35. तो इस वैल्यू में अगर मैंने n की जगह n minus 1 by 2 की जगह 17 एंड n की जगह 35 रखा, तो लेट्स सी वेदर वी आर गेटिंग द आंसर और नॉट. सो लेट अस पुट द वैल्यू. यहाँ पुट करी वैल्यू तो हमें मिल रहा है a plus 17d अपॉन a dash plus 17d dash is equal to, जहाँ n है उसकी जगह हमें 35 पुट करना है. We are getting 5 into 35 plus 4 upon 9 into 35 plus 16. अब ये क्या है आपका? दिस इज a18th, फर्स्ट AP का 18th टर्म, एंड डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है वो a dash 18 है, दैट इज द सेकेंड AP, 18th टर्म ऑफ द सेकेंड AP. जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रेट.
ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यूज जब हमने सॉल्व करी तो हमें मिला 179/321. सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 179/321. इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें. सी द क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP. प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास दो अलग अलग AP थे. वी वर हैविंग द टू डिफरेंट APs, whereas here we are having same AP and the number of terms are different here. So हमें क्या प्रूव करना है? उनका सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ m टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है आपको, एंड mth एंड nth टर्म्स के रेशियोज आपको फाइंड करने हैं. Now again using the same formula we will be getting Sm is equal to m/2 2a plus m minus 1 into d. Similarly Sn भी वही लिखा, उस रेशियो में हमने पुट किया उसे Sm अपॉन Sn is equal to m square by n square गिवन है आपको. अब आपने इसमें कैंसिल आउट किया टर्म्स को, उस m दोनों तरफ से m कैंसिल हो जाएगा, n भी कैंसिल हो जाएगा. जब आपने पूरी तरह सॉल्व किया, जब हम सॉल्व करते हैं पूरा, तब हमें d इज इक्वल टू 2a मिलता है. जब गिवन कंडीशन यू आर सॉल्विंग, यू आर गेटिंग d इज इक्वल टू 2a. नाउ वी विल टेक द रेशियो ऑफ mth एंड nth ऑफ tm. आई एम टेकिंग a प्लस m माइनस 1 इंटू d. d की जगह मैंने रखना है 2a, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a, a कॉमन. जब सॉल्व किया हमने तो हमें मिल रहा है 2m प्लस 1, 2m माइनस 1. ठीक है. सिमिलरली tn इज इक्वल टू a इंटू 2n माइनस 1. हमें निकालना है रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म. वी विल बी पुटिंग द वैल्यू 2m माइनस 1, 2n माइनस 1, and the answer is 2m minus 1 upon 2n minus 1. तो इस तरह से आपको रिक्वायर्ड रेशियो 2m minus 1 रेशियो 2n minus 1 मिल गया. सो चिल्ड्रन, आपने देखा जो भी क्वेश्चंस आपने लास्ट ईयर किए वैसे ही हैं, सॉल्यूशन सब पैटर्न्स वही है, बस थोड़ा सा हायर ऑर्डर है. So that is all for this class. In next class we will be learning about some more formulae or properties of AP.